हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। These two are extremely important concepts which you have learned in earlier standards, but I thought of making the consolidated video series of these two subjects. These are small short duration videos, बहुत ही प्यारे वीडियो है और आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लीज बेयर इन माइंड कि दीज कंसेप्ट्स एंड मेथड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल, नॉट ओनली यूजफुल, दे आर मस्ट फॉर योर 11th and 12th standard studies, not only of mathematics but of other subjects like physics, chemistry, etc. समझ गए बच्चों? चलो, my request is you watch all these videos serially. समझ गए? Now, we are first going to study indices, and that series I am going to name the videos like 1A, 1B, like that. Then we are going to study the basic concepts of logarithms and formulae of logarithms. Please see all these videos. I am repeating very carefully because in 12th standard, in many chapters of mathematics and physics and chemistry, you will require this. And lastly, I have made two videos which will explain you how to use log tables for calculations, and these are also required in physics and chemistry as well as some chapters of mathematics. Why I am making this series of videos on indices and logarithm? Because I have seen my students of 12th standard who have no clear idea of these two concepts and they are finding difficult to understand the chapters of 12. चलो आगे चलेंगे. This is, as I said, indices part 1A, where we are going to study basic concepts, we are going to study formulae, and I am going to explain you formulae with simple examples. चलो बच्चों, let us see what is indices. Indices is a plural of the word index. समझ गए बच्चों? Now in mathematics, when I write, let us say 5 raised to 2. So 5 is nothing but the base and 2 is nothing but the index. समझ गए बच्चों? 5 raised to 2, square of 5. 5 raised to 3, cube of 5. 5 raised to 20. 5 raised to 20. तो इंडेक्स यहां कितना है बच्चों? 20. समझ गए? This is the meaning of index. And what is indices? Plural of index is indices. Now, note down all these things when you are repeatedly seeing the video. Now, this is the definition. A raised to m means what? We multiply A, how many times? M times. Now if I say 3 raised to 5, that means I have to multiply 3 how many times? 5 times. 3 into 3 into 3 into 3 into 3. तो m हो गया इंडेक्स, ये a इज ए पेज. तो यहां इंडेक्स कितना है बच्चों? 5. समझ गए? All these things you must
note down and remember. Even though you have studied in earlier standards, ऐसा consolidation video बनाना is very important for you. Now I say a raised to 1 upon m. इसका मतलब क्या होता है अभी? इसका मतलब होता है mth root of a. समझ गए? So if I say 16 raised to half, तो हाफ मतलब ये डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 16. हालांकि स्क्वेयर रूट में हम लोग ये 2 नहीं लिखते हैं. When we don't write, it is understood it is square root. So how we write it? Square root of 16, and that is nothing but plus or minus 4. Now if I say 27 raised to 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 27. बराबर है? अभी एवरी टाइम यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट, बट द कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. समझ गए बच्चों? नाउ देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. व्हाट आर दोज फॉर्मूलेज? लेट अस सी. नाउ इफ आई से a raised to m multiplied by a raised to n, तो क्या हो गया बच्चों? बेस इज सेम, तो इंडेक्स गेट्स एडेड a raised to m plus n. समझ गए बच्चों? नाउ एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. 5 raised to 2 multiplied by 5 raised to 3 will be what? 5 raised to 2 कितना हो गया? 5 into 5 multiplied by 5 raised to 3 कितना हो गया? 5 into 5 into 5. समझ गए बच्चों? तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन 5 कितनी बार आया? 5 बार. 5 raised to 5. और ये 5 कैसा आया हमारा इंडेक्स? 2 plus 3. समझ गए? दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल. सेम थिंग you can understand if I say a raised to m divided by a raised to n, so it will be a raised to m minus n. You can try yourself. न्यूमरेटर में लिखो 5 raised to 3, डिनोमिनेटर में लिखो 5 raised to 2, तो 3 minus 2 will be 5. बराबर है बच्चों? चलो नाउ और एक एग्जाम्पल देखेंगे, और एक फॉर्मूला देखेंगे. चलो इधर तक तो समझ गया? वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से देख लो. समझ गए? नाउ इफ आई से a raised to minus m, तो ये होता है 1 upon a raised to m. Similarly, if I say 1 upon a raised to minus n, तो ये न्यूमरेटर में अगर मैं लेके आएगा तो दैट इंडेक्स चेंजेस द साइन. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए हम लोग, साइन चेंज हो गया. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. समझ गए बच्चों? चलो इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग देख रहे हैं बच्चों. नाउ इफ आई से a raised to m ब्रैकेट raised to n, मतलब हमने क्या किया? a raised to m कितनी बार मल्टीप्लाई किया? n बार. तो इट बिकम सिंपली a raised to m मल्टीप्लाइड बाय n. एग्जाम्पल बताओ. चलो 5 raised to 2 ब्रैकेट raised to 3, मतलब 5 raised to 2 हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार. 5 into 5 ये एक बार हो गया 5 raised to 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 into 5 दूसरी बार हो गया 5 into 5 कितना हो गया? 5. 6 बार हो गया 5 raised to 6.
ये 6 कैसा आया बच्चों हमारा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। समझ गए बच्चों? चलो कंसेप्ट तो मैं आपको ये वीडियो में इंडाइसेस का क्लियर करूंगा। सेम कंसेप्ट यू हैव टू यूज इन लॉगरिथम्स। समझ गए? हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा लॉगरिथम। अभी देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। a रेस टू m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा बच्चों? a रेस टू m मतलब a m टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 1 अपॉन n मतलब nth रूट, तो इट विल बी nth रूट ऑफ a रेस टू m। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चों? समझ गए? एक बार वीडियो पॉज करके ये आप देख लीजिए। और चलो आगे एक एग्जांपल इसका मैं बताता हूं। 16 रेस टू 3 अपॉन 2 मतलब क्या? स्क्वेयर रूट ऑफ 16 रेस टू 3 बराबर है। तो ये क्या हो गया है? स्क्वेयर रूट 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 16 इंटू 16 इंटू 16। समझ गए? कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट हो गया। और एक कंसेप्ट ले लो, a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू m। अभी यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों का इंडेक्स सेम है, तो इट बिकम्स ab रेस टू m। ये किसका भाई है बच्चों? हमने क्या देखा था? a रेस टू m इंटू a रेस टू n, तो a रेस टू m प्लस n। समझ गए? यहां क्या था? दिस बेस वॉज सेम। यहां क्या है? इंडेक्स क्या है? इंडेक्स सेम है। समझ गए बच्चों? नाउ इफ आई आस्क यू a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू m अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a रेस टू m प्लस n, m प्लस m, तो इट विल बी a रेस टू 2m। समझ गए बच्चों? तो these kind of examples you please bear in mind. These examples are not the types of examples which are asked in the examination. These examples are to explain you what is the concept. अभी यहां देखो, स्क्वेयर रूट 16 16 16 किए हम लोग, तो मैं ऐसा भी लिख सकता है, स्क्वेयर रूट 16 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वेयर रूट 16 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वेयर रूट 16, तो इट विल बी नथिंग बट 4 इंटू 4 इंटू 4। समझ गए बच्चों? तो ये इंडाइसेस के लिए इतने सब कंसेप्ट्स याद रखो। और एक लास्ट कंसेप्ट बच्चों, एनीथिंग रेस टू 0 विल ऑलवेज बी 1। 2 करोड़ रेस टू 0 विल बी हाउ मच? ओनली 1। समझ गए बच्चों? एनीथिंग रेस टू 0 विल बी 1। सो सपोज आई टेक 2000 रेस टू 0। अरे 2000 क्या 10 करोड़ होने दो, आंसर कितना आएगा? 1। याद रखेंगे बच्चों? वेरी गुड। अभी इतना ही याद रखो और ये वीडियो सब सीरियली देखो, 1A 1B या 1A 2A 2B, ऐसा जितना भी है। पहला 1 सीरीज देखो, बाद में आगे का सीरीज देखो। समझ गए? थैंक यू।